Hello students, welcome to CodeGrab. So today we will discuss about the features of Python. This topic is very helpful for computer science students, for informatics practice students, either in 11th class, 12th class, or in some other higher classes. So let us discuss it first one by one. The very first feature of Python, that it's a high level language. सो बेसिकली जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो टू टाइप्स की है. ईदर इट्स अ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. सो व्हाट डू मीन बाय हाई लेवल एंड लो लेवल? सो लो लेवल लैंग्वेज is the language that is understandable directly by the system, directly by the machine. जो मशीन की नेटिव लैंग्वेज होती है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1 and in a binary code, it's a machine level language that we call it a low level language. But as a layman, as a new user, we are not have so much expertise that we can code in the machine language directly. So we learn the languages in terms of high level, that is in the form of user friendly language, in user terms, in simple English languages. So Python is a high level language, so it is very easy to code because जो भी इसके अंदर सिंटैक्स सेमेंटिक्स हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं. Then the second feature that Python has, it's a interpreted language. So again, the language can be a compiled language or a interpreted language. So basically होता क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, जब हम कोड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है. तो हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो एट लास्ट मशीन को करना है. ठीक है, तो द कोड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड. सो इट नीड्स अ ट्रांसलेटर. ठीक है, जैसे सपोज करिए अगर हमें ही लैंग्वेज सपोज आई नो द English language and some other person knows the Hindi language only, and I have to communicate with that particular person, but he don't know English and I don't know the Hindi language. So I need some translator that knows both Hindi and English. So there the translator will translate my language to him and his language to me. Just like that, computer has also some translators like compiler, interpreter and assembler. So compiler का काम क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली रीड्स द होल प्रोग्राम फर्स्ट. कंपाइलर इंटरप्रेटर की जो वर्किंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है काम करने की उनकी. तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर बेसिकली कंपाइल्स द होल कोड फर्स्ट. दैट मीन्स इफ योर कोड हैज 10 lines, तो फर्स्टली इट विल रीड the whole program. If it has some errors, if it has some syntax error or semantics error, then it will notify you. Until and unless you will not remove those errors, वो आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, तो कंपाइलर हमारा ऐसे वर्क करता है. तो जितनी हमारी लैंग्वेजेस है, लेकिन सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, C#, ये सारी हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसलेटर वर्क करता है वो आपका कंपाइलर वर्क करता है. बट जो हमारा पाइथन है, पाइथन इज़ योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. बिकॉज इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है? इंटरप्रेटर बेसिकली रीड्स द लाइन one by one. First it will read the first line. If it is okay, syntactically it's okay, then it will translate it into the binary code. Then it will read the second line, it will read the third line, and so on. If it finds some error somewhere, then it will just terminate that program from that point. That means जहाँ तक तो आपका प्रोग्राम सही है वहाँ तक आउटपुट आएगा. अदरवाइज क्या होगा? आपका प्रोग्राम के अंदर वो एरर शो कर देगा. इसको मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से पाइथन आपका एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. देखिए, सपोज करिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. हमने कहा A=10 और मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट दिस इज पाइथन. देखिए यहाँ तक मेरा कोड करेक्ट है. ठीक है, और मैंने इसके बाद एक कोड दिया PRNT. देयर आई मेड एन एरर कि मैंने प्रिंट का स्पेलिंग गलत कर दिया है. तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी, when I'll run this program, I'll save it with www. तो you can see
कि यहाँ पे जब ये चलेगा तो देखो यहाँ पे दिस इज पाइथन आ गया, बट आफ्टर दैट इट शोइंग एन एरर, नेम पेरेंट इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स जहाँ तक आपका प्रोग्राम ठीक है वो वहाँ तक प्रोग्राम को चलाएगा, उसके बाद जैसे ही उसको एरर शो होगी वो वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। दैट इज वाई पाइथन इज नोन एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। देन द थर्ड feature of Python, that Python is your dynamically typed language. Now again, जो आपके लैंग्वेज होता है इट कैन बी इधर स्टेटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड। देखो स्टैटिक का मतलब हो गया कंपाइल टाइम पर और डायनेमिक का मतलब हो गया रन टाइम पर, और टाइप का मतलब यहाँ पे हो गया आपका डाटा टाइप। तो जो हमारी लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, जो हमारी लैंग्वेजेस पाइथन से अर्लियर रही हैं वो सारी की सारी आपकी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक a इक्वल्स टू 10, बट हमने अभी आपने देखा हमने पाइथन में कैसे डिक्लेयर किया, डायरेक्ट किया मैंने a इक्वल्स टू 10, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे C में या C++ में करनी होती तो आई हैव टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप लाइक इंट a इक्वल्स टू 10 या फ्लोट a इक्वल्स टू 3.45 या कैर इक्वल्स टू a इक्वल्स टू h, एनीथिंग। तो बिफोर असाइनिंग एनी वेरिएबल या बिफोर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल आई हैव टू स्पेसिफाई इट्स डाटा टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस के साथ, लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है। पाइथन आपकी एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। आप देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे भी कोडिंग के अंदर, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट इसका टाइप करना चाहूँ, देयर इज़ अ टाइप फंक्शन, ठीक है। टाइप फंक्शन है आपका जिसके अंदर मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट हो जाएगा। टाइप ए किया मैंने, जस्ट लाइक दैट। सपोज करिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू अभी चेंज कर दी और मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया इसे, और अगर मैं अब इसका डाटा टाइप प्रिंट करूँगी तो रन टाइम पे इसने ये इसका डाटा टाइप अपने आप ही चेंज कर देगा। अगेन मैंने सपोज वैल्यू दी प्रिंट 8 इक्वल्स टू 8.9, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। और व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, सी इसने क्या दिखाया, क्लास इंट, क्लास str, क्लास फ्लोट। दैट मीन्स रन टाइम पे ही इसने ए को फर्स्टली इंटीजर टाइप का बनाया, देन इसने अकॉर्डिंग टू द वैल्यू उसको स्ट्रिंग टाइप का बनाया, देन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इसने इसको फ्लोट टाइप का बनाया, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। देन द फोर्थ फीचर that Python is a very easy to code and understandable. Actually again जो Python है इसके अंदर जो सिंटेक्स हैं, जो आपके फंक्शंस नेम हैं एंड ऑल, ये सारे इंग्लिश में हैं और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे जैसे हम आप आगे सीखेंगे आपको समझ में आएगा व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो इट्स वेरी इजी टू कोड। देन द second last feature of Python, that Python is a portable language. Now what do you mean by portable? Portable का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। इसमें पोर्टेबल का पाइथन के अंदर मतलब है कि पाइथन के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं ये जो है आपके एक तरीके से बहुत आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स ये कहीं पर भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं, इधर विंडोज़, इधर यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टोश, iOS, एंड्रॉयड, किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन के जो कोड्स हैं वो रन करते हैं। इसी वजह से जो पाइथन है वो बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है, क्योंकि जब हम वेबसाइट्स ऑन करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होना होता कि हमारी कौन सी वेबसाइट कौन से सिस्टम्स पे खुलेगी। Then the last feature, that Python is your free and open source language. So Python is your free language because you can download the Python from internet freely without paying anything. And इसके लिए और दूसरी बात क्या है कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन भी कहीं ना कहीं कोड हुई है और जो उसके पीछे का सोर्स कोड है वो भी आपको ओपन है, वो भी पब्लिक के पास ओपन होता है। सो दैट इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ एक्सपर्टाइज दैट यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई द कोड टू मेक इट बेटर, टू हैव सम एडिशनल फीचर्स, देन यू कैन। So these are the features of Python. Hope you understand it well.
अगेन यही कहूँगी कि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग कोड क्रैब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कोड क्रैब, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।